आज 21 जून 2026 ऑल ओवर इंडिया एंड अक्रॉस दी वर्ल्ड हम लोग इंटरनेशनल योगा डे पालन कर रहा हूँ। ये बेसिकली 2014 साल में यूएन रिकॉग्नाइज्ड इसको किया था। 21 जून विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। बेसिकली दिस इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएशन था 2014 साल से। हम लोग रेगुलर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हिसाब से पालन करते हैं एंड दिस इज़ 12th इंटरनेशनल योगा डे जो नॉट ओनली इन इंडिया डिफरेंट कंट्री में इसको पालन किया जा रहा है। योगा हमारा परंपरा में गवर्नमेंट माने इंडिया का परंपरा में योगा था, पहले से ही था एंड उसको और भी पूरा वर्ल्ड में फैलाने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था एंड उसको यूएन ने 2014 साल में स्वीकृत किया था। योगा नॉट ओनली एक्सरसाइज बट इट गिव्स ए बैलेंस लाइफ फॉर मेंटल पीस, स्ट्रेस रिलीफ एंड बैलेंस लाइफ फॉर द इंडिविजुअल एट द सेम टाइम फॉर द सोसाइटीज अपलिफ्टमेंट। सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट, पीस एंड सारी दुनिया में जो अभी जो सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन है, योगा का ही माने जो योगा कैन प्ले ए वेरी वाइटल रोल फॉर द पीस, स्ट्रेस रिलीफ एंड हेल्दी लाइफ। जैसे इस बार का मेन जो थीम है कि हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। एक्चुअली ये होता है कि हम लोग को ये होता है कि जब उम्र हो गया है 40 हो गया तो हमारा मोबिलिटी कम हो जाता है, तो ये बोला जाता है कि आप रेगुलर योगा का अगर अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप 40 साल में भी 20 साल का बच्चे जैसे ही आपका मोबिलिटी रहेगा, आपका हेल्थ उतना अच्छा रहेगा। इवन इफ़ यू कंटिन्यू दिस थिंग, 50 साल में आपका 30 साल का उम्र का जैसे लड़का लड़की होता है उस तरफ का मोबिलिटी रहेगा, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो मेरा ये कहना है योगा इंडिया का चीज़ है एंड इसको हम लोग को भली भांति अपनाना चाहिए, जो कि है हमारा साथ में है। बहुत बच्चे लोग, बहुत इंस्टीट्यूट इसके साथ जुड़े हुए देख करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पर इसको और भी रेगुलर वाइज में करना पड़ता है। जैसे हम लोग जैसे ऑफिस में रहते हैं, इंस्टीट्यूट में हो, हम लोग को टाइम थोड़ा कम मिलता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एवरीडे 10-15 मिनट करके भी हम लोग योगा अभ्यास कर सकते हैं तो दैट विल गिव अस a healthy life. It will help us to lead a healthy life, fit life, stress-free life, and it gives a very healthy aging. আন্তৰ্জাতীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে সকলো সংবাদকৰ্মীৰ লগতে আমাৰ সকলো কৰ্মীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। এয়া আমাৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্যৰ কথা যে আন্তৰ্জাতীয় যোগ দিৱস হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ছিষ্টেম, যিটো যোগ বহুদিন ধৰি অহা এই যোগাসন প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন ঋষিমুনিবিলাকৰ দ্বাৰাই হওক বা আমাৰ সাধাৰণ মানুহেই যিবিলাক কৰি আছে সেইবিলাকে স্বীকৃতি পাইছে। আৰু এইটো আচলতে শৰীৰ, মন আৰু এই সকলো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত উপযোগী আৰু সেইকাৰণে গোটেই বিশ্বই ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছে যাতে আমাক আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসটো পালন কৰিব লাগে। আৰু এইটো এটা আমাৰ দৈনন্দিন অভ্যাস যে আমি 21 জুনৰ দিনাই যে পালন কৰিব লাগিব, কিন্তু এটা স্বীকৃতি দি এটা দিনত আমাৰ উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে এই দিৱসটো কৰা হৈছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ যোগাসন অতি দৰকাৰ, যি আমাৰ আজি 12তম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। আৰু এই 12তম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি আমাৰ এই কৰ্মচাৰীবৃন্দৰ লগতে অন্যান্য আমাৰ কিছু অতিথিক লৈ পেলাই আমাৰ ইয়াতে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰিছে। আৰু ইয়াত আমাৰ জড়িত কৰা হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীস্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ ইনষ্টিটিউট অফ কালচাৰ, যিটো সাংস্কৃতিকৰ যিটো কালচাৰ আছে, য'ত সদায় এই যোগাসনৰ প্ৰক্ৰিয়া বা তাত এই প্ৰেক্টিছ চলি থাকে। আৰু তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্ট আহি আমাৰ ইয়াতে কৰ্মীবৃন্দক দেখুৱাই দিছে যে কেনেকৈ কৰিব লাগে। আৰু এনেদৰে আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এই আন্তৰ্জাতীয় যোগ দিৱস ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত পালন কৰা হয়। আৰু আমাৰ যি কৰ্মীবৃন্দ আছে তেওঁলোকে অতি আগ্ৰহেৰে এই বিষয়টো জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে, যিহেতু এটা আমাৰ এটা দৈনন্দিন এটা দৰকাৰী অভ্যাস। এই অভ্যাসটো আয়ত্ব কৰিবলৈ আমাৰ কৰ্মীবৃন্দ বহুত ইচ্ছুক। সেই হিচাপে আমাৰ আটাইবিলাক কৰ্মচাৰী আজি উপস্থিত হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে। আৰু আমাৰ সুন্দৰভাৱে আমাৰ সঞ্চালক মহোদয় আছিলে আৰু বাকী আমাৰ যি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰী আছে আৰু আপোনালোক মিডিয়াৰ আমি ব্যক্তিসকলক দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ ভাল লাগিছে যাতে আমাৰ এই যোগ দিৱস
টো যাতে আকৌ প্ৰচাৰ হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকে যাতে প্ৰচাৰ কৰে এইটো এটা আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিব। बाहर की तरफ इनहेल, हथेली बाहर की तरफ एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एकम, द्वि, त्रीणि, चत्वारि, पंच। उल्टा करें। एकम, द्वि, त्रीणि, चत्वारि, पंच। बोलते दाहिने तरफ मुड़ेंगे, राइट, front, left, front, left, front, right, front, left, front, relax। दुई में दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। मेरी जमीन से उठाना जरूरी नहीं है, अगर उठाना है तो उठा सकते हैं। शरीर में स्ट्रेच करेंगे, पूरे परिवर्तन करेंगे। धीरे वापस रिलीज योर हेड्स। वृक्ष आसन पर उठाएगा और दृष्टि सामने की ओर एक जगह टिका दे, दोनों हाथ ऊपर लेके जाए। वृक्ष आसन कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। त्रीणि, हाथ को रिलीज करें। चत्वारि, पैर को रिलीज करें। इसको विपरीत करेंगे, बाहर करेंगे। सामने एक जगह दृष्टि टिका दे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ही अच्छा है। त्रीणि, करेंगे पाद हस्तासन स्थिति में है। एकम, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। द्वि, श्वास छोड़ते हुए नीचे को झुके। कमर में दर्द है वो नहीं करेगा, सावधानी से करेगा और घुटना नहीं मोड़ेगा। घुटना सीधा रखते हुए जितना झुक सकते हैं झुकेंगे। 20 उंगलियां एक सीध में रखने का प्रयास। श्वास प्रश्वास नॉर्मल, कुछ समय स्थिति में बने रहे। कमर में दर्द है तो सावधानी से करें, अवॉइड करें। धीरे धीरे वापस श्वास बढ़ते हुए ऊपर आए, हाथों को रिलीज करें। चतुर्वारी एंड रिलैक्स, रिलैक्स करें।